I guess I have not taken any oral test about the chapters which we are doing right now, the chapter number 5, unit 5. कोई हमने किया है क्या? ओरल टेस्ट कोई किया है? नहीं किया ना? मौखिक. Okay. So first of all, same raise hand option is there. What do you mean by yoga? Anybody who can answer me, what do you mean by yoga? As usual, अंकिता, कनिष्का. इसके अलावा भी कोई लोग जवाब दे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी. इससे ये मुझे लगता है कि मैं बाकियों को भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि इन दोनों बच्चों के घर में कभी नहीं गया आज तक और ये सबसे ज्यादा आंसर करते हैं. I want everybody to please be active. इंटरैक्टिव बनिए, थोड़ा जवाब दीजिए. एनीबडी एल्स? कनिष्का के अलावा कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा? व्हाट डू यू मीन बाय योगा? एज यूजुअल नो. सो कनिष्का, कैन यू प्लीज आंसर दिस? Yes, Master. So yoga is derived from a Sanskrit word yuj, which means to join or to unite, and it is the union of the individual soul with the supreme or the divine soul. Wow, very good. So yoga is derived from a Sanskrit word yuj, which means to join or to unite. This also means the unification of Atma with Paramatma. So the unification of individual soul to the supreme soul is also called a yoga. Okay. There are other meaning of definitions of yoga. So according to Maharishi Patanjali, what is yoga? According to Maharishi Patanjali, what is yoga? I'm just recapturizing कि किसको किसको याद है कि मैंने कुछ पढ़ाया था. Kanishka and who else? Parikshit. Yes, Parikshit will answer this. Parikshit Dagar, can you answer this? According to Patanjali, what is yoga? You're not audible, beta. Parikshit, you're not audible. आपकी आवाज नहीं आ रही. Checking the impulses of mind. नहीं आ रही. आरव? Very good. Checking the impulses of mind is yoga. Parikshit, आप अपना माइक ठीक करो, देखो क्या प्रॉब्लम है. Lord Krishna said in Bhagavad Gita about yoga. What is that? कौन बताएगा? According to Lord Krishna, what is yoga? Lord Krishna ने भागवत गीता में योगा के बारे में कुछ बोला है. So what he said about yoga, or what is yoga? What is the definition of yoga according to Lord Krishna? Arav, very good. Kanishka, Parikshit. This time, let somebody else raise the hands. तमाशबीन ना बने रहें, कृपया हाथ ऊपर करें जिनको आंसर आता है. Parikshit, speak if we can hear you. If we can hear you, बोलो Parikshit. Sir, skills in actions or efficiency. Skill in action or efficiency alone is called yoga, according to Lord Krishna, who said this in Bhagavad Gita. Very good. According to Agam, what is yoga? According to Agam, what is yoga? Ankita. Yes. Kanishka. Ankita बताएगी. Sir, the knowledge about Shakti and God. Shiv. Shiv and Shakti. Very good. The knowledge about Shiv and Shakti is yoga. जिसको शिव और शक्ति के बारे में knowledge है, वही योगा है. Very good. A very easy one. According to Maharishi Patanjali, Ved Vyasa, what is yoga? Rashi. हाथ दब जाएगा बेटा. According to Maharishi Ved Vyasa, what is yoga? Arav, Ankita, Kanishka, Subodh. Subodh, can you please answer? Yoga is attaining the pose. Yoga is attaining the pose. Very good. So these are the different definitions of yoga according to different people. Now we have the importance of yoga. Raise hand option से आप जाके raise hand कर सकते हैं.
What is the importance of yoga? Sir, it creates discipline in our life. Bhavya, yes. Sir, it creates discipline in our life. Very good. And increase the activeness of our mental state. Okay, I would like to correct you here, Bhavya. The thing is, physical education is a subject where nothing is unknown. You know the answer of each and every question. Like we study about physical development, mental development, social development, emotional development, neuromuscular development, good health and health development. हम इन सबको योगा से कनेक्ट कर दें तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा. बट यू नीड टू लर्न द क्या बोलते हैं उसको, कोरिलेशन ऑफ द टॉपिक. जो भी टॉपिक है उसको कैसे कोरिलेट करेंगे, वही हमारा बेसिक. फिजिकल डेवलपमेंट का फिजिकल प्योरिटी है, तो फिजिकल प्योरिटी में योगा क्लींजेस आवर इंटरनल organs and it also cleanses us externally. There are three things in our body, that is Vat, Pitta and Kapha. These are the specific answers. When you answer this way, the examiner is going to give you a punch, means full marks. If you are answering this way, that an individual is consists of three things, that Vat, Pitta and Kapha. So when these three things will be in a balanced or in a proportionate manner, the person will be free of diseases, may not have any problem, they may not have any lifestyle diseases, or there are many asanas or pranayama which helps in curing such problems. Or those are Neti, Dhoti, Noli, Basti, Kapalbhati, etc. and etc. तो ये हमारा physical purity हो गया. उसके बाद हमारा आएगा cure and prevention of diseases. There are many asanas which helps in cure and prevention of diseases. Asanas like Vajrasana is there, okay, which helps in getting rid of diabetes. There are many other diseases, bronchitis, sinusitis, arthritis, gastritis, dyspepsia, asthma, high blood pressure, high fever. These are the diseases which can be cured or even prevented by doing some of the yogasanas. You can give some yogasanas like Bhujangasana, Vajrasana, Tadasana, कोई भी आसना दे दो, ये डेफिनेटली किसी ना किसी बीमारी से हमें छुटकारा दिलाता है या बीमारी नहीं होने देता है. रिड्यूसेस मेंटल टेंशन. आपने मुझे क्लास कर दो, अब दीदी के साथ. हाँ, दीदी के साथ. बाय. Okay. So cure and prevention from diseases हो गया. Reduces mental tension. We see, reduces mental tension is the heading of the topic, and when you want to start such answer, you should know that how to start the answer. First of all, you have to write about what is mental tension, how it occurs. So first of all, mental tension क्या है? Everybody nowadays is running behind money. People are having a very hectic lifestyle. People do not have time for themselves. They have lots of mental tension and stress about their job, their life, their studies, their parents आते हैं कि 98.9% आए, मामा कहते हैं 100% आए तो और अच्छा है, और मम्मी कहती हैं चल 95 भी ले आएगी तो ठीक है. तो बच्चों को भी मेंटल टेंशन है कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से. तो इसलिए to get rid of such mental tensions, yogasanas are there. There are many asanas like meditative asanas or curative asanas which helps in getting rid of the mental tensions. आप किसी आसना के नाम भी लिख सकते हो. शवासना is there, ठीक है, और मकरासना is there, Shalabhasana is there, Saptasana is there, Bhujangasana is there. These asanas are going to give you a good mental status where you are not stressed, or there is no anxiety, there is no tension, there is no fear. So it will reduce that. Body, healthy body बताया था, provide relaxation, helps maintain correct posture. Postural deformities भी कुछ लोगों को होती है, जैसे काइफोसिस है जिसको हम कुबड़ापन बोलते हैं. इसके हमारे नेक के सीधा नीचे एक राउंड शेप हो जाता है, इनवर्ड कर्वेचर हो जाता है. जो हमारा बैकबोन है चेस्ट के पास से वो अंदर की तरफ हो जाता है और बैक में वो बाहर की तरफ निकल जाता है. दैट इज कॉल्ड कुबड़ापन, काइफोसिस. स्कॉलियोसिस में क्या होता है, हमारा जो एक साइड से इनवर्ड कर्व हो जाता है और दूसरे साइड से हमारा बैकबोन साइड में टेढ़ा हो जाता है.
तो दैट इज कॉल्ड स्कॉलियोसिस. देयर इज वन मोर डिजीज which is स्कॉलियोसिस हो गया, काइफोसिस हो गया, लॉर्डोसिस. लॉर्डोसिस में क्या होता है, जो हमारा टमी वाला एरिया होता है ना, वो आगे की तरफ निकल जाता है. तो जो स्पाइन है हमारा, स्पाइन आउटवर्ड कर्वेचर बना देता है बैक साइड में. बैक से वो पेट जो है आगे की तरफ निकल जाता है, हिप पीछे की तरफ निकल जाता है, उसको हम बोलते हैं लॉर्डोसिस. तो ये डिफॉर्मिटीज है. फ्लैट फुट सुना होगा आप लोगों ने, सुना फ्लैट फुट. बोर्ड लेग्स, बोर्ड लेग्स के बाद हमारा आता है नॉक नीज. नॉक नीज में हमारे नीज अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं. इनकी कुछ कॉजेज हैं, हैवी लोड रखने से या ओबेसिटी के कारण या सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स है या फिर मसल और लिगामेंट्स एंड टेंडेंस वीक होने की वजह से ये सारी बीमारियां होती हैं, ये सारी परेशानियां होती हैं. एंड वी कैन गेट रिड ऑफ दिस बाय डूइंग योगासनास. देयर आर मेनी आसनास जिनको हम बटरफ्लाई पोज कहते हैं. ठीक है, उसमें हमारा जो घुटने अंदर की तरफ होते हैं, वी कॉल इट बोर्ड लेग्स, नॉक नीज. यस, नॉक नीज. तो नॉक नीज को भी हम खत्म कर सकते हैं. देयर आर आसनास लाइक तड़ासना, चक्रासना, त्रिकोणासना, जिसमें हमारा स्पाइनल कर्वेचर का जो वो होता है, स्पाइनल कर्वेचर का जो डिजीज होती है, डिफॉर्मिटी होती है, जो जिसको मैंने 3 बताया, काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कॉलियोसिस, उसको भी ठीक करने में हेल्पफुल होता है योगा. ठीक है. स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, रिड्यूसेस ओबेसिटी एंड प्रोवाइड्स हेल्थ, एनहांसेस मोरल एंड एथिकल वैल्यूज. मोरल एथिकल वैल्यूज भी मैंने आपको बताया था कि जो अष्टांग योग है या जो एलिमेंट्स ऑफ योगा, हमने एलिमेंट्स ऑफ योगा कर लिया. कनिष्का, हैव यू डन द एलिमेंट्स ऑफ योगा? So first 2 yama and niyama we have done, and third asana we have to start. वेरी गुड. सो यमा एंड नियमा ही है जिसके में बताया गया है कि कौन कौन से एथिकल वैल्यूज हमारे पास होने चाहिए, so that we can become successful, so that we can attain a good pose. After attaining a good pose, we can get a control over our breath. After getting a control over our breath, we can have a control over our mind and senses. After getting a control over mind and senses, we can have a control over our dharana, that is the scattered mind is brought to a focal point, that is called dharana. When the scattered mind is brought to a focal point, we get the complete constancy of mind, that is called dhyana. After dhyana, we achieve samadhi, that is the unification of atma with the paramatma, when we could meet the supreme soul. तो ये एक सिस्टम है जो हमें फॉलो करना है. आफ्टर फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स वी कैन अचीव द आत्मा विद द मिलन ऑफ आत्मा विद परमात्मा. Then only it can be achieved. If you don't have a pure heart, pure mind, pure body, it's not possible. Yama में मैंने बोला कि you have to be have non-violence. That is, there are 5 according to Maharishi Patanjali, there are 5 yamas. Those 5 yamas are ahimsa, that is non-violence. भी हम बोलते हैं सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य and अपरिग्रह. ये 5 आपको आ गया है या मैं दोबारा से बताऊं इनको? Anybody wants to know this again, or should I move further? So please repeat. Okay, I'll repeat it. So, ahimsa or non-violence. Ahimsa and non-violence is the first yama, which tells us that one should not be harming the creatures, or one should not be hurting any human being. So this happens because of anxiety, jealousy, hate, anger, and such type of negative emotions are included in violence. इस टाइप का नेगेटिव इमोशंस हमारे में आता है कि अंकिता ने 99% लिया, तो रेदर देन वर्किंग हार्ड हम उससे जेलसी हो जाती है, हम उसको हेट करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं. भाई उसने मेहनत किया है. अगर किसी के पापा के पास BMW है या मर्सिडीज है, फेयर इनफ. हमारे पास मारुति 800 है, फेयर इनफ. तो कहने का मतलब है कि इस तरीके का थॉट रख के, इस तरीके की जेलसी, हेट रख के आप किसी को हार्म करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है. सो पहला यमा जो है वो ये है कि वन शुड बी फॉलोइंग अहिंसा एंड नॉन वायलेंस, जो गांधी जी का था कि अहिंसा परमो धर्म, मतलब सबसे बड़ा धर्म जो है वो अहिंसा है.
सबका रेस्पेक्ट करें, हर क्रिएचर का रेस्पेक्ट करें, ठीक है। ये है। उसके बाद सत्य और ट्रूथफुलनेस, वन शुड बी ट्रू फ्रॉम माइंड, बॉडी, सोल, फ्रॉम डीड्स, फ्रॉम थॉट्स एंड मीन्स इसका मतलब है कि हर इंसान को अपने सोच में, अपने कर्मों में और अपने वी फॉलो ट्रूथफुलनेस थॉट्स, वो अपने शब्दों में, वर्ड, थॉट्स एंड डीड्स में हमें एकदम सच्चा होना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम कैमरा ऑफ करके खाना खा रहे हैं तो ठीक है, हम खाना खा रहे हैं, सर ने पूछा तो हम बोल सकते हैं यस सर आई वाज ईटिंग, फेयर इनफ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज द ब्रेकफास्ट टाइम, यू कैन डू दैट, बट it's not so that you lie. If you are lying, it means you are not following the rule of yama. Okay? So satya means that one should be true from his words, deeds and actions. After that we have asteya. Asteya means non-stealing. One should not be stealing the ideas, thoughts and actions of anybody. किसी का style, किसी का thought, किसी के ideas को हमें चोरी नहीं करनी चाहिए. One should not also steal the beautiful materials of somebody. कई बार क्या होता है, किसी का पेन है, बहुत अट्रैक्टिव है, पार्कर है, महंगा है, तो हम चुरा के रख लेते हैं. तो यमा कहता है कि हमें ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए. We should avoid stealing anything. It can be ideas, it can be thoughts, it can be action, it can be style of anybody, or it can be a material of somebody. ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से हमारा जो समाधि का प्रोसेस है, जो 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा का प्रोसेस है, वो हैम्पर हो जाएगा. आफ्टर दैट वी हैव ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य इज not to eat that food which stimulates your sexual desires, not to read the pornography books or not to see the porn videos which stimulates your sexual desires. Because अगर आपके मन में गलत भावना है, आपके मन में किसी के लिए गलत सोच है, your mind is running behind sexual desires, then obviously you are not going to do anything good in your life. You cannot concentrate on your studies. You cannot achieve your desired result and goals. Yes. So this is why it is said that brahmacharya should be followed strictly. No such foods, no videos, no. I guess I'm audible to all of you. Yes. Okay. So we were doing brahmacharya. After brahmacharya, we have aparigraha. Aparigraha means leading a life with minimum requirement. So ये इसका aparigraha का था. I think you should switch on your videos, everybody. So हमारे पास जो भी है, जितनी भी चीजें हैं, उससे ही कम से कम इक्विपमेंट्स में हमें अपनी लाइफ जीनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक nowadays we have less resources with us. For example, we have your father might have lost job, or your father must be getting half of the salary, or many of the parents who are suffering from such financial crisis. So what they are doing, they are not going for dinner, they are not going for high mirchi, they are not going to Radisson, they are not ordering pizza and all those things. What we are doing, we are just satisfied with whatever is there at home, like dal chawal, roti sabji and all that thing. तो इसे कहते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए. एक साधु जो होता है, एक सेंट जो होते हैं, वो अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट में अपनी लाइफ को जी लेते हैं. एक वस्त्र होता है जो ऊपर से नीचे तक लपेट लेते हैं, दैट्स इट. रेबन का चश्मा नहीं चाहिए, ठीक है. उसके बाद अपना एडिडास की टी शर्ट, प्यूमा के शूज, कोई जरूरी नहीं है. हम कम से कम रिक्वायरमेंट में अपनी लाइफ को जी सकते हैं. दिस इज व्हाट इज नोन एज
लीडिंग लाइफ विथ मिनिमम रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड अपरिग्रह। उसके बाद है हमारा नियमा। नियमा इज द बेसिक रूल टू फॉर सर्वाइवर या बेसिक रूल टू लीड अ लाइफ। जिंदगी को जीने के लिए कुछ रूल्स है। वो रूल है सबसे पहला शौचा। शौचा का मतलब होता है प्योर, प्योरिटी। तो जब तक आपके लाइफ में माइंड बॉडी सोल से आप प्योर नहीं होंगे तब तक आप कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते। आप छोटा सा देख लो, इफ यू डू नॉट टेक बाथ, हमें फ्रेशनेस नहीं आती, हम फ्रेश फील नहीं करते, हमें डिजीनेस, हमें यावनिंग, हम ढीला ढाला महसूस करते हैं। फिर हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है, क्या बदल जाता है नहाने से? हमारी बॉडी प्योर हो जाती है। शौचा का हम पालन करने लगते हैं। वी बिकम प्योर फ्रॉम internally. So this is what शौचा is. After शौचा we have संतोष. संतोष means satisfaction. One should be satisfied with whatever they have. There should be no such desires which causes problem in your life. You should have the satisfied life. Whatever you have, if you have Splendor Plus, fair enough. If you don't have R15, if you don't have Kawasaki, it's okay to us. Nothing is going to change the things. आपके पास Splendor Plus है, उससे भी आप स्कूल जा सकते हैं, आप कोई काम कर सकते हैं, ठीक है? तो हमें 1000 सीसी का Kawasaki रखने की जरूरत क्या है? तो जो भी आपके पास चीजें हैं, it can be a brain, it can be your appearance, it can be the dresses, it can be materialistic thing. Whatever you have, you should be satisfied with it. So satisfaction is must. It's a must. It's an important rule of life that one should be satisfied. We must feel satisfied with what God has given us. जो भी चीज भगवान ने हमें दिया है उसके लिए हमें satisfied होना चाहिए. We should be happy also. Can the cameras go on? Else I'm leaving the class. If your camera is going off, then I'll have to leave the class. The option is yours. Switch on the cameras, else I'm going to leave the class. See, somebody is eating. I know lunch चल रहा है, breakfast चल रहा है, पर कोई बात नहीं, जो खा रहे हैं वो खा सकते हैं, लेकिन गलत है, आप थोड़ा पहले उठिए and do not spoil the class. ठीक है? आपकी वजह से मुझे डांट पड़ती है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है. After that, पहले मैंने बोला शौचा. आफ्टर दैट आई हैव सेड संतोष. आफ्टर संतोष आई हैव सेड तप. तप का मतलब क्या होता है? डेडिकेशन, फोकस. सो व्हेन अ पर्सन is doing tap, is focused towards achieving a goal, let me tell you, the person will definitely achieve the goal. Nobody is going to stop the person from achieving the goal. You are studying physical education, you are eating breakfast, so obviously you are just not going to achieve your goals. You are not honest. So you should have the honesty. हाथ यहाँ रख के खाते हैं तो भी पता चलता है, कैमरा ऑफ करके खा रहे होते तो भी पता चलता है. So avoid such thing. 10 मिनट 15 मिनट पहले उठिए, जल्दी रेडी होइए. That is called tapa. Tapa means the dedication towards achieving the goal, the hard work which a person makes to achieve his desired goal. For example, if you talk about the ancient time, there were saints, there were Sadhu ji, there were Mahatma ji who used to do tap. They used to sit at a place for longer months or years and they worship God Shiva. And they worship God Shiva, please appear, God Shiva, please appear. And then God Shiva appears and says, हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए. तो फिर वो राक्षस होता था तो बोलता था कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं किसी के सर पे हाथ रखूं तो वो जल जाए. तो शिव जी कहते थे ओके तथास्तु, ऐसा हो जाए. तो उसने क्या किया, जो राक्षस था उसने शिव जी के ऊपर ही ट्रायल मारना शुरू कर दिया. लेट्स सी, शिव जी जलते हैं, उन्होंने वरदान तो दे दिया मुझे. तो दौड़ भगाने लगा शिव जी को. पीपल वर रनिंग बिहाइंड कि क्या हो रहा है, शिव जी को ये राक्षस क्यों भगा रहे हैं. ऐसे करते करते शिव जी एक गुफा में जाके छुप गए जहां उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हुई. भगवान विष्णु ने उन्हें बोला कि क्या हुआ, तो बोला कि देखो मैंने ऐसे ऐसे ना उसको वरदान दे दिया कि तू जिसके सर पे हाथ रखेगा वो जल जाएगा. बोला ये तो बहुत मुसीबत हो गई. तो विष्णु भगवान ने सोचा कि चलो कुछ करते हैं. उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर लिया और उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम अगर जैसे मैं डांस करूंगी वैसे तुम डांस करोगे तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार.
तो उन्होंने फिर डांस किया और उन्होंने अपना हाथ अपने सर पे रख लिया, और ऐसे ही डांस किसने कर लिया? राक्षस ने, और वो जल के मर गया। अब इसका दो मतलब है ये स्टोरी सुनाने का। पहला मतलब था कि हम कर रहे थे तप, तप करने से हमें प्रभु मिलते हैं, तप करने से हमें हमारा डिजायर्ड गोल मिलता है। डेडिकेशन से, फोकस से, कॉन्टिन्यूअस हार्ड वर्क से हमें हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। 99% चाहिए, 99% आएगा। सो दिस इज व्हाट तप इज। अब कर्म अच्छे नहीं है तो आपको वही विष्णु जी की तरह ऐसे सर पे हाथ रख के जला देगा कोई। यू विल बी फिनिश्ड, योर लाइफ विल बी फिनिश्ड, योर डिजायर गोल विल नॉट बी अचीव्ड। तो ये दूसरा स्टोरी था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। दैट इज तप। आफ्टर तप वी हैव स्वाध्याय। स्व मतलब होता है स्वयं, और अध्याय मतलब होता है पढ़ना। सो स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी। When a person does the self studies, the person has the ability to understand the things. Studying the books like Bhagavad Gita, holy books, of Hindus or any dharma, that is not mentioned. लेकिन आप कोई भी सेल्फ स्टडी करते हैं, आपके लिए आपका सबसे बड़ा धर्म आपका किताब है जिसको आप पढ़ रहे हैं, जिससे आप कोई सक्सेस अचीव करेंगे। That is what is called swadhyay, self study. One should do self study of holy books, ठीक है, like वेद हो गया, वेद ग्रंथ हो गए, उपनिषद हो गए, इस टाइप के, गीता हो गया, डिवोशनल जितनी भी बुक्स हैं उनको हम पढ़ सकते हैं। That is called swadhyay. Then ईश्वर paranidhana. The next topic is ईश्वर paranidhana, which means whatever we do is dedicated to God. Whatever God has given us, we should be thankful for that to God. That God has given you this. जो भी हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें फल मिलते हैं, तो ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो if we dedicate everything to God, let me tell you, the wrong things will not happen in life. Like rape cases will be not happening. Stealing the things will not happen. चोरी, झपटमारी, चेन स्नैचिंग, ये सब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सोचेंगे जो भी हम कर रहे हैं ये भगवान को जाएगा। विल द पीपल डू द रेप्स? नो। क्या कोई किसी को छेड़ेगा? नहीं, क्योंकि उसको ये डर होगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान को जा रहा है। द थिंग्स आर डेडिकेटेड टू गॉड। सो दिस वे द प्योरिटी विल कम इन द सोसाइटी। द प्योर माइंड्स, प्योर हार्ट विल बी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. So there will be no hatred, there will be no jealousy, there will be no such things in the world. Everybody will do the work and it is dedicated to God. So he or she will try to do a good work. ठीक है? Is that clear? ईश्वर परनिधाना is done. किसी को कोई डाउट है ईश्वर परनिधाना में या किसी भी टॉपिक में, नियमा और यमा में? No, sir. Okay. Anybody else who has doubts? नहीं तो कहेंगे केवल कनिष्का जवाब देती है और सर आगे बढ़ जाते हैं। So वो भी फिर एक मेल जाएगा वीपी मैम को, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। So anybody has any doubt, please speak. I have said Kanishka indirectly not to speak. No, sir. Yes, anybody has any doubts? No, sir. Okay, very good. So the next is asana. हमने 8 elements of yoga में कर लिया है yama, the mandatory struggle for survival. Then we done niyama. Niyama मतलब होता है नियम, rules. So the mandatory rules for survival. The third one is asana. Asana का मैंने आपको बताया था, attaining a pose is asana. Sitting in a comfortable position is asana. So after yama and niyama, asana come on the third level. Asana means position or posture of body. It also means to sit in easy or easy position. Due to its popularity, most of the people think that yoga is nothing but asana. They are not aware that asana is a step towards yoga. Yoga जो है warehouse है. Yoga is a warehouse. ठीक है, और ये जो एक एक एलिमेंट्स हैं यही आपको वहां तक पहुंचाएंगे. So yoga is a complete package. And these are the steps to reach to the yoga. Sitting in a comfortable position is not yoga. It's just the definition of yoga. Yoga or asana is a step. It's a step to reach to yoga. Is that clear to all of you? Yoga is what? Meeting the individual soul to the supreme soul. उसके 8 steps हैं. यमा, नियमा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहारा, धारणा, ध्याना एंड समाधि.
समाधि में हमें भगवान मिलते हैं, ठीक है, मर के भगवान नहीं मिलते। कि पिछली बार मेरे से एक बच्चे ने बोला कि सर क्या समाधि लेने का मतलब हमें मरना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता बेटे। भगवान क्या है? भगवान स्वच्छता है, भगवान सुंदरता है, भगवान सक्सेस है, भगवान सब जगह है, सब कुछ है। तो फिर हमें मरने की जरूरत क्यों है? हम प्योर हैं माइंड बॉडी सोल से, हम अपने गोल्स के लिए जा रहे हैं, हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, हमारी सोच गलत नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, प्रत्याहारा का ध्यान रख रहे हैं, ऑब्वियसली हमें भगवान मिलेंगे। तो पहला यमा था, उसके बाद नियमा आया, फिर मैंने बताया आसना मीन्स अटेनिंग अ पोज, इट इज द स्टेप टू रीच टू योगा। पीपल मिसअंडरस्टूड आसना एज अ योगा, बट आसना इज नॉट योगा, आसना इज अ स्टेप टू रीच टू योगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? दोबारा बताने की जरूरत है आसना क्या है? The asana is for the divided into 3 parts. Asana is, you can write it down, don't sit idle. Asana is for the divided into 3 parts. That is meditative asanas, meditation वाला, curative asanas जो हमारे deformities को cure करता है, cultural asana भी उनको बोलते हैं, और relaxative asana जो हमें relaxation देते हैं, जैसे शवासना हो गया, धनु, उसके बाद हमारा शलभ आसनास हो गए, या और भी जो है जो हमें रिलैक्सेशन देते हैं। Those asanas are called relaxative asana. Makarasana is there, Savasana is there, and Shashankasanas are there. These are the relaxative asana, and there are 3 types of asana. The one was meditative, the second was relaxative, and the third was curative or corrective asana or cultural asanas. ठीक है? Asana is done. Any doubt in asana? No, sir. After asana we have pranayama. Pranayama क्या होता है? कोई बताएगा what is pranayama? Anybody who can tell me what is pranayama? Sir, it's a breathing exercise. Yes, very good. You're so close to it. Pranayama is basically control over the breathing process. There is a breathing process जिसमें हम inhale, retaining a breath and exhale करते हैं. That is what is a process of breathing. सांस लेने का एक process है. The one is inhale. Inhaling is called puraka. पूरा होना, पूरा हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं. That is called puraka. Puraka. Puraka means inhalation. Inhalation के बाद है कुंभका. Kumbhaka. कुंभका. कुंभका means retaining the breath. When one can retain the breath, जैसे हमने की सांस लिया, सांस लेने को हमने बोला inhalation पुरका. उसके बाद सांस लेकर के हमने सांस को कुछ देर अंदर की तरफ रोक के रखा, उसको हमने बोला रचका. सॉरी, उसको हमने बोला कंभका. कंभका मीन्स रिटेनिंग अ ब्रेथ. ठीक है? हम कुंभका को इंटरनल कुंभका एंड एक्सटर्नल कुंभका के 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. सो इट बिकम्स 4 टाइप्स. द नंबर 1 इज पुरका, inhalation. Number 2 is retaining the breath inside is called internal kumbhaka. The third one is exhalation, rechaka. R-E-C-H-A-K-A. Rechaka means exhalation. When we exhale, जब भी हम सांस को छोड़ते हैं, that is called exhalation, that is called rechaka. And after releasing the breath, एक कंडीशन आता है जब हम सांस को नहीं लेते हैं, मतलब रिटेनिंग द ब्रेथ, जो हमने सांस को छोड़ दिया उसी पोजीशन में हम कुछ देर और रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कुंभका. मतलब हमने सांस को रिलीज करके कुछ देर उसी पोजीशन में, मींस वी आर नॉट इनहेलिंग अगेन. सो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल कुंभका. प्राणायाम पता चल गया? इट इज बेसिकली द name that you gave for the external kumbhaka. एक्सटर्नल कुंभका इज एक्सटर्नल कुंभका. जो हमारा कुंभका होता है ना, उसको उसका 2 पार्ट है. देखो मैं दोबारा से बताता हूँ. प्राणायाम का मतलब होता है कंट्रोल ओवर आवर ब्रीथिंग प्रोसेस. जो भी हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस है उसके ऊपर हमने कंट्रोल करना है. हम कैसे करेंगे? हमने सांस लिया, दैट इज कॉल्ड पुरका. P-U-R-A-K. पुरका मीन्स inhalation. After puraka there is retaining a breath inside our lungs.
हमने अपने अंदर, अपने चेस्ट में, अपने लंग्स में उस सांस को थोड़ी देर रोक के रखा, दैट इज कॉल्ड कुंभका, इंटरनल कुंभका। ठीक है, इंटरनल कुंभका। रिटेनिंग द ब्रेथ इनसाइड इज कॉल्ड इंटरनल कुंभका। उसके बाद आता है रेचका, RECHAK। रेचका इज एक्सेलेशन। रेचका इज एक्सेलेशन मींस वी हैव टू एक्सेल द ब्रेथ, हमने सांस को बाहर छोड़ना है, एक्सहेल करना है। एक्सहेलेशन इज रेचका। तीसरा था। चौथा है एक्सटर्नल कुंभका। एक्सटर्नल कुंभका में when we release the breath and we are into that position, means we are not breathing in again, that is known as external kumbhaka। समझ आ गया बेटा आपको? अब ध्यान से देखो, सांस लिया, उसको रेचका पुरका बोला, सांस अंदर रोक के रखा, इंटरनल कुंभका बोला, सांस को छोड़ दिया, रेचका हो गया, एक्सेलेशन हो गया। सांस को छोड़ने के बाद हमने उसी पोजीशन में हम थोड़ी देर रहे, मतलब हमने दोबारा सांस नहीं लिया, दैट इज एक्सटर्नल कुंभका। रिलीज ऑफ ब्रेथ इज कुंभका। समझ आया? Yes. रिटेनिंग ऑफ ब्रेथ, सॉरी, रिटेनिंग ऑफ ब्रेथ, इनहेलेशन, रिटेनिंग ऑफ ब्रेथ, एक्सेलेशन, अगेन रिटेनिंग ऑफ ब्रेथ, एक्सहेल करके हमने दोबारा सांस नहीं लिया, दैट इज एक्सटर्नल कुंभका। चारों टॉपिक आपको समझ आ गए? कोई डाउट है? No, sir. किसी को दोबारा कुछ जाना है? आई डेफिनेटली टेल यू। अंकिता, यस और नो? Sir, no doubt. Anybody wants me to repeat this? A breathing control process, pranayama. No, sir. Okay. अब इसमें प्राणायामा के बारे में बताया है कि प्राणायामा helps in regulating the metabolic activities and enhances the functions of heart and lungs. Heart lungs का function को enhance करता है और metabolic activities हमारा जो है बहुत अच्छा कर देता है। It also provides longevity to life, क्योंकि हम अच्छे से सांस लेंगे तो हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में जाते रहेंगे, तो हम बीमार नहीं होंगे, हमारा हार्ट जो है वो कम रिस्क पे रहेगा। तो इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि आप कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। ठीक है, दिस इज व्हाट, कंट्रोल ऑफ ब्रेथ। एक नाक से सांस लेना है, उसको थोड़ी देर रोक के रखना है, फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से बाहर निकालना है, तो ये कंट्रोल ऑफ ब्रेथ ही है। तो इसलिए ये जो है बहुत ही बेनिफिशियल है फॉर आवर लंग्स एंड हार्ट, एंड ऑल्सो फॉर इट हेल्प्स इन लॉन्गेविटी। व्हाट इज लॉन्गेविटी? लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग हेल्दी लाइफ। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव प्रत्याहारा। प्रत्याहारा मीन्स सेल्फ कंट्रोल और कंट्रोल ओवर योर माइंड एंड सेंसेस। When a person is able to control his mind and senses, it is said to be he has achieved pratyahara. Pratyahara means control over the mind and the senses. आपको पता है दे आईज है, वो सेंसेस में आते हैं। कोई बहुत ब्यूटीफुल चीज देखी तो दिमाग जो है उधर की तरफ अट्रैक्ट होता है, चाहे वो ब्यूटीफुल कोई बहुत ही ब्यूटीफुल कार है, बाइक है, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन है, या कोई भी इस तरीके की चीज हमारी आंखें देखती हैं तो हमारा दिमाग उधर जाता है। तो जब हम अपने आप को कंट्रोल में ला लेते हैं तो हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं रह जाता। वी थिंक कि ये सब मोह माया है। ठीक है, तो जब हमारी सोच ऐसी हो जाती है कि ये सब मोह माया है, तब हम अच्छी सोच रखने लगते हैं। हम किसी चीज के पीछे नहीं भागते, हम कोई चीज कोई फीलिंग नहीं रखते किसी चीज के लिए। कोई टच करता है तो हमारी फीलिंग बदलती नहीं है, कोई चीज दिखती है तो हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड प्रत्याहारा। अ कंट्रोल ओवर योर माइंड एंड योर सेंसेस इज कॉल्ड प्रत्याहारा। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है? प्रत्याहारा में किसी को कोई डाउट है? सो प्रत्याहारा का मतलब होता है कि द अटैचमेंट ऑफ वेरियस सेंसेस सच एज वर्ड्स। किसी के शब्द बहुत अच्छे लग गए, किसी की ब्यूटी अच्छी लग गई, किसी का टच से अट्रैक्ट हो गए, टेस्ट, स्मेल, कोई चीज बहुत टेस्टी लग रहा है, कोई चीज बहुत ही अच्छी स्मेल है किसी चीज की, तो हमारा दिमाग जो है उधर जाता है। क्या खुशबू थी, क्या खाना था, क्या कार थी, क्या लड़की थी, टाइप ऑफ थॉट्स हमारे दिमाग को ऑक्यूपाई करते हैं। तो जब हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं, पा लेते हैं,
इसका मतलब हमने प्रत्याहारा को अचीव कर लिया है. वी आर नॉट रनिंग बिहाइंड ब्यूटी, वर्ड, स्मेल, टेस्ट और एनी ऑफ द थिंग्स. दैट इज कॉल्ड अचीवमेंट ऑफ प्रत्याहारा इज डन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. आफ्टर दैट वी हैव धारणा. क्या होता है कि जब हम प्रत्याहारा करते हैं, माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, तो हमारा जो स्केटर्ड माइंड होता है, जो फलाने के छोले कुलचे बहुत अच्छे हैं, पिज्जा हट का पिज्जा बहुत अच्छा है, उसका पास्ता तूने कभी खाया, उसके मोमोज तूने खाए, वहां के ब्यूटी को देखा, उस कार को देखा, उस बाइक को देखा, इन चीजों में हमारा दिमाग बहुत ज्यादा स्केटर्ड होता है, बहुत फैला रहता है. सो उस दिमाग को एक फोकल पॉइंट पे लेके आने के प्रोसेस को हम धारणा कहते हैं. धारणा मीन्स टू ब्रिंग द स्केटर्ड माइंड टू अ फोकल पॉइंट or near the focal point is called dharana. In pratyahara, when we get a control over our mind and senses, we could be able to control our scattered mind. We could bring the scattered mind to a focal point. That process is called dharana. समझ आ गया बेटा? धारणा क्या है? Understood? Yes. आफ्टर धारणा वी हैव ध्यान. अब क्या हुआ, हमने अपने स्केटर्ड माइंड को एक फोकल पॉइंट पे ले आए. जो फोरहेड का हमारा ये पोर्शन है, हम यहाँ पे अपने स्केटर्ड माइंड को ले आए. मीन्स वी आर एबल टू चैंट ओम. ओम की चैंटिंग या उच्चारण करनी शुरू करते हैं, लाइक ओ. So in that process, what we are doing, we are bringing the scattered mind to a focal point. That was dharana. So when the complete constancy of mind, जब दिमाग के स्थिरता को प्राप्त कर लिया जाता है, when the complete constancy of mind is achieved, when the scattered brain or mind is brought together at one focal point, which can be the supreme soul, which can be Om, which can be anything on which you are concentrating, is called ध्याना. मतलब कंप्लीट कॉन्स्टेंसी ऑफ माइंड मिल गया, मतलब कि ध्यान हम लगा रहे हैं, हमारा ध्यान कंप्लीट हो गया है. क्लियर है? सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना? पहले हमें ये सारी चीजें करनी है, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचार्य करना है, हत्या करना है ना? उसके बाद हमने सोचा रहना है, संतोष रखनी है, तप रखना है, फोकस्ड रहना है किसी चीज के लिए, स्वाध्याय करनी है, सेल्फ स्टडी एंड ईश्वर प्रणिधाना करना है. उसके बाद हमने एक आसना करना है, मतलब एक अच्छे पोजीशन पे बैठ जाना है, कंफर्टेबल पोजीशन पे, जहां पे हमारा जो है प्राणायाम, हम अपने सांसों को कंट्रोल कर सके, प्रत्याहारा हम अपने माइंड को और सेंसेस को कंट्रोल कर सके. उसके बाद हमारा आता है धारणा. धारणा इज स्केटर्ड माइंड को एक फोकल पॉइंट पे ले आए. उसके बाद ध्यान, कंप्लीट कॉन्स्टेंसी ऑफ माइंड अचीव हो जाए. उसके बाद समाधि. समाधि इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ योगा or last element of a strong yoga, which means the union of individual soul to the supreme soul. When the union of individual soul to the supreme soul is achieved, it means the samadhi is achieved. जब हम सारी चीजें अच्छे से कर पाएंगे, इसका मतलब होगा कि हम भगवान से, हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल पाएगी, क्योंकि प्योर हो गई है, शुद्ध हो गई है, स्वच्छ हो गई है. तो इसको हम बोलते हैं समाधि. Is that clear to all of you? I want everybody to switch on the cameras. The cameras must go on. Thank you. So it's time for the attendance, and after attendance, I have to tell you something about the examination. Akansha, switch on your mics, everybody, so that you do not waste my time. Akansha, Ankita, Present, sir. Anuj Kaushik, Ayush Dabas, प्रेजेंट सर. दिया त्यागी, आज तक नहीं आई ये लड़की तो. गौतम कुमार, कनिष्का अत्री, Present, sir. कशिश जुनेजा, कशिश जुनेजा, मेघा रुस्तगी, पलक उपाध्याय, Present, sir. परीक्षित डागर, Present, sir. रजत,
समर्थ, सौरभ कुमार, Present, sir. श्रेया मुखरिया, शुभम सिंह, सिद्धार्थ, सुबोध कुमार, Present, sir. विशेष तनवर, मनांक मीना, कशिश जुनेजा को प्रेजेंट है पर कहाँ है पता नहीं है, उसको अटेंडेंस भी नहीं लगाना है। ऐसे तो लोग हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। आई कैन सी दिस गर्ल है कशिश जुनेजा की बॉय है, गर्ल है ना कशिश, क्योंकि ये कॉमन इसको अटेंडेंस भी नहीं बोलना होता है। मनांक मीना, इज ही प्रेजेंट? यस सर। अरे धन्यवाद हमारे जो आप पधारे। रोहित जायसवाल, प्रेजेंट सर। विजुअल Present, sir. ध्रुव सिंह, मुकुल यादव, मानव जायसवाल, वापी शौकीन, okay, now after that we have A students. Shreya Mishra, Present, sir. गौतम कक्कड़, Present, sir. भव्य भारद्वाज, Present, sir. वंशिका, शिवांश देसवाल, अरुणिता वर्मा, आरव शर्मा, दमन आहूजा, ऋषभ, we are 20 and I have the attendance of just 14 students. Real shame. किसका नाम नहीं आया प्लीज बताओ ताकि मैं आपका अटेंडेंस लगा सकूं मेरे प्यारे बच्चे। अटेंडेंस के लिए तो बोल दो यार। आरव यू डन? आरव डन? ओजस you are in which class? Sir, 11th B. B. ओजस you are in 11th B बेटा? Yes, sir. You are joining classes from today. No, sir. I joined the first, second, and third class. Third class. Yes, sir. Anybody else whose name is not called, please let me know so that I can. Yes, beta, कौन? Sir, Anshika. Anshika, you are in which class? Sir, 11th A. 11th A. Just a minute, beta. Let me write your name. Anshika. ANSHIKA. अंशिका पूरा नाम क्या है? Sir, Anshika Mohan. मोहन. Sir, HOON. H. अच्छा HOON. ठीक है. अंशिका हूँ. Anybody else whose name is not called, please let me know. सबका हो गया? Who school? Anuj Kaushik. Yeah, I got the message from the PGT group. Let me cut his name. Anuj Kaushik. He has left actually. Leaving नहीं, उसका नाम हटा भी दिया गया. And Anuj Kaushik. क्यों छोड़ रहा है ये स्कूल? Okay. Non-attending. अच्छा, नॉन अटेंडिंग. ठीक है, वेरी नाइस. ओके बेटा. सो अभी किसी को कोई डाउट है चैप्टर 5 में? क्योंकि एग्जाम से पहले मुझे चैप्टर 5 फिनिश करना है और इसके बाद का जो टॉपिक है मैं चाहूंगा कि आप लोग पढ़ के आए सो दैट आसान रहे, पढ़ते पढ़ते जल्दी हम लोग उसको फिनिश कर लें. उसके बाद है टेस्ट एग्जामिनेशन. सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड हैं बट थोड़े ट्रिकी हैं. कोशिश करिए कि क्वेश्चन को
1.5 घंटे का पेपर है, 12 क्वेश्चन है, जैसे कि 1 से 4 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का, 4, 5, 5, 6, 7 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, और 8, 9, 10, 11, 12 5 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के। तो उसमें क्या किया गया है कि जो तीसरा जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट्स कर दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, Arav is a very good athlete. He is able to do long distance races, but he is not able to do the short distance races. What type of muscle fiber does Arav have? पहला क्वेश्चन। Why Arav is not able to do the sprinting races? ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है, what can be done to enhance the endurance of a person? या what methods are used to enhance the endurance of the person? तो इस टाइप से अभी एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। या assertion reasoning का क्वेश्चन है, physical education is the sum of those experiences which come to an individual through movement. assertion हो गया, reason में डाल दिया, physical education helps only in physical development. तो ये true है क्या? reason R पे मैंने लिख दिया physical education only helps in physical development. तो क्या हो जाएगा ये? A is true but R is false. इस टाइप से assertion reasoning के 1-2 क्वेश्चंस होंगे, और मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, एबिलिटी ये सारी चीजें दे दी जाएंगी, या कुछ इस टाइप से रिलेटेड चीजें दे दी जाएंगी, और फिर उसके बाद प्रॉब्लम होगी कि कौन किससे मैच करें। तो 2 मार्क्स में ये आता है इस टाइप के क्वेश्चंस। आप ध्यान से पढ़िए, so that I don't want any casualty, I don't want any fail students in physical education. It's going to be a fun because okay. So that's all for today's class. If you want, you may leave the class. Please study, self-study for 10-15 minutes physical education, and full mark is guaranteed. So I guarantee you, sir. if you study at least 20 minutes physical education. Yes, beta? So as you said, the paper will be for 1.5 hours, but sir, the PDF file which we got from the class groups, it is written that is for 40 marks from 9 a.m. to 9:40 a.m. 40 मार्क्स का है, 40 मिनट का है। हाँ जी सर। तो भी बहुत है। 12 क्वेश्चन 40 मार्क्स में खाली टिक करना है, एक वर्ड लिखना नहीं है। तो इज इट गोइंग टू टेक मोर देन 12 मिनट्स? अगर 12 क्वेश्चंस हैं तो 25 मार्क्स से 25 क्वेश्चन समझ लो, तो 25 मिनट लगेंगे आंसर आता होगा तो, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं जो सॉल्व करने हैं, कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं जो आपको फॉर्मूला लगाने हैं। सिंपल लर्निंग है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, सिंपल केस बेस्ड है, सिचुएशन बेस्ड है, तो आपको सारा ही आता है। अभी तक जो क्वेश्चंस मैंने पूछा उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन था जो नहीं आता है? कनिष्का, हाउ कैन endurance of a person can be increased? The methods to increase the endurance. Yes. So it can be increasing the number of repetitions of the thing which we are doing. It means you have not studied the endurance part. There are 2 types of endurance, short term and long term. In the long term endurance, it is given, it can be enhanced by 3 methods: fartlek training method, continuous training method, and interval training method. अगर ये नहीं लिखोगे तो वहां पे जाके ढूंढते रह जाओगे कि कंटिन्यू क्या क्या इसका आंसर है, क्योंकि जो आप बोल रहे हो वो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो तब आपका 40 मिनट कम पड़ेगा। तो इसलिए हर टॉपिक को डीपली पढ़िए ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे। व्हाइट फाइबर, रेड फाइबर, फास्ट ट्विच मसल, स्लो ट्विच मसल, ये पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो फिर मुंह खोल के खड़े हो जाओगे वहां पे। सो स्टडी डीपली. If you not study deeply, the question is not going to be easy. Bye bye, tata, God bless you all. See you in the next class.